Hello children, this is standard 6 subject science. Our chapter is chapter number 4, sorting materials into groups. Children, in previous session we have completed up to 4.2. Some of the properties we have completed, that is the first property was appearance, that also we had completed, and the next one is hardness. Now today's topic is soluble or insoluble. soluble हम किसे कहेंगे चिल्ड्रन? किसी भी लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस हम ऐड करें और वो उसे स्टर करें और जब वो पूरा डिज़ोल्व हो जाए, मतलब डिसअपियर हो जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूबल. लेकिन अगर वो सब्सटेंस उस वाटर में या लिक्विड में हमें कुछ मात्रा में पड़ा रहा मिलता है, सो दैट इज़ कॉल्ड इनसॉल्यूबल. सो टू डू दिस एक्टिविटी वी हैव टू collect some of the substances. They are given in this table 4.3. So in this table here it is given around 5 substances we have to collect, and also we need 5 glasses, half of the glass filled with water. Fine. So in first glass we add salt, in second we add sugar, then we add sand, again in fourth glass we add chalk powder, and in the last one we add sawdust. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि if we add salt in water, what happens? Disappears completely in water. Obviously हम salt water बनाते हैं या लेमन जूस बनाते हैं, उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, या घर में कोई लिक्विड दाल बनती है या ऐसा कोई सूप बनता है तो उसमें भी हम सॉल्ट डालते हैं, बट इट डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली. फाइन. सो दैट इज़ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड कम्प्लीटली इन लिक्विड, सो इट इज़ कॉल्ड soluble substance. Then here it is come sugar. Does sugar dissolve? Yes, it also disappear or dissolve completely. Fine. So sugar also we can say it is soluble substance. Then again it is sand. Okay, sand में क्या होगा चिल्ड्रन? आप ग्लास ऑफ वाटर में सैंड डाल के कितना भी स्टर करोगे, but will it dissolve? Will it disappear? No at all. So it will not dissolve. It does not dissolve. ओके, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व. फाइन. सेम में चॉक पाउडर. तो चॉक पाउडर को जब हम ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करके उसे स्टर करेंगे, थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि ये डिज़ोल्व हो गया, बट इफ़ वी कीप द ग्लास सेट फॉर फ्यू मिनट्स वी कैन सी अगेन चॉक पाउडर विल सेटल टू द बॉटम ऑफ द ग्लास. फाइन. दैट मीन्स इट डज़ नॉट डिज़ोल्व. फाइन. So that it is also called, we can say that it cannot dissolve in water. Fine. And so dust, again so dust जो है वो लकड़े से जो मिलती है ना, वो so dust, तो वो भी dissolve होगी नहीं. Fine. So here it is given this explanation. Here you can see, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. Fine. So here some examples are given. Here we can see, if we dissolve any substance in water, so substance will dissolve in a liquid. तो ऐसे उसके particles वैसे हमें दिखाई नहीं देंगे, but we can say that substance will disappear. And in another one, here you can see substance will settle to the bottom. अगर वो भारी substance है तो, अगर हल्का substance है तो यहाँ ऊपर वो दिखेगा. So the substance will not dissolve in a liquid and formed precipitate. Fine. So इसमें हमें dissolve जो substance है वो पूरा dissolve होगा नहीं. Fine. So now here it is, one more example is given. So water is called a
solvent. So the liquid in which any other substance can dissolve that substance or that liquid is called solvent. So we can say that water is known as universal solvent. universal solvent इसे इसलिए कहते हैं चिल्ड्रन कि वाटर ही ऐसा एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व. फाइन. सो हियर शुगर को क्या कहेंगे? सॉल्यूट. वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज नोन एज सॉल्यूट, और इससे जो बनेगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. दैट मीन्स वाटर में शुगर पूरा डिजोल्व होके जो एक हमें लिक्विड मिलता है दैट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन, और इसे कहेंगे सॉल्यूशन. फाइन. ये आपको अच्छे से याद रखना है. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके. सो हियर water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? Yes children, बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क और वाटर को मिला दे तो एकदम वो मिक्सड अप हो जाएंगे. ओके. सेम वे अगर हम लेमोनेड बनाए, नींबू पानी बनाए, तो उसमें भी लेमन के ड्रॉप्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे. तो बटर मिल्क है तो बटर मिल्क में भी हम वाटर ऐड करें तो इट विल ऑल्सो डिज़ोल्व. दैट मीन्स दोनों लिक्विड हैं एक दूसरे के साथ एकदम मिक्सड हो जाएंगे. फाइन. सो हियर वन मोर एक्टिविटी हैव टू टेक कि एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्सड होता है या नहीं. फॉर दैट हियर टेबल इज गिवन. So in this table, which liquid you need to take? Solubility of some common liquids in water. तो हमें वाटर लेना है ग्लास में और इसमें अलग अलग ग्लास में लेना है और यहाँ पे जो दिए हैं वो लिक्विड इसमें मिक्स करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ विनेगर, तो इट मिक्सिज वेल, दैट मीन्स इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर. देन लेमन जूस, तो लेमन जूस तो ऑब्वियसली हम बनाते ही है ना, तो दैट ऑल्सो कैन बी मिक्सड वेल. देन मस्टर्ड ऑयल. सी चिल्ड्रन, कोई भी ऑयल है ना तो वो वाटर के साथ कभी अच्छे से मिक्स होता नहीं. तो मस्टर्ड ऑयल है या कोकोनट ऑयल है या केरोसिन है तो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हियर इट इज़ completely mixed, but here one layer you can see, that means जो ऑयली पार्ट है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. दैट मीन्स सम ऑफ द सब्सटेंसेस, सम ऑफ द लिक्विड्स कैन नॉट डिजॉल्व completely in water. Fine. So let us see. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो यही होगा जब हम केरोसिन या ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे तब. Some gases are also soluble in water whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. Children, you know that फिश जो है ना वो कैसे ब्रीथ करती है? गिल्स से. लेकिन वो ऑक्सीजन वहाँ पे उनको इन द फॉर्म ऑफ एयर नहीं मिलता, बट इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर. ऑक्सीजन जो है वो वाटर में होता है. सो दैट मीन्स फिश एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. तो इसके लिए या प्लांट्स जो सर्वाइव करते हैं वाटर में उसके लिए भी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर. फाइन. ऑब्जेक्ट्स दैट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. तो ये एक और प्रॉपर्टी हमें मिली है, दैट इज़ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट और सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैन सिंक इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल पानी में आप एक पेबल डालो, जैसे एक पत्थर डालो या स्टोन डालो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल सिंक, डूब जाएगा. बट इफ़ यू थ्रो अ वुडन ब्लॉक और स्टिक इन वाटर, तो व्हाट हैपन?
obviously it will float. So it is also one of the property of any material, whether that some of the material will sink in water and some of will float on water. So for that, here it is one more activity is given, see floating and sinking. So जो ऊपर हमें दिखाई देते हैं फ्लोट क्या करें, कौन से मटेरियल है, फॉर एग्जांपल रबर है, ऐसा बलून है, या शटल कॉक है, मतलब ऐसी हल्की चीज़ें हैं जो फ्लोट करेगी. बट सिंक कौन करेगा, मेटल है, स्टोन है या ग्लास है, तो ऐसे मटेरियल हैं वो सिंक करेगा. सो हियर सम ऑफ द मटेरियल्स वी हैव टू कलेक्ट, दैट इज़ यहाँ पे कुछ दिया है, फॉर एग्जांपल बॉल, कैंडल, कॉक, पेंसिल, रबर, इरेजर, एग. तो इसमें ये सारे जो है वो फ्लोट करते हैं. और नीचे जो दिए हैं हियर दे आर रॉक, स्क्रू, की, रिंग, पेपर क्लिप, पेनी, मतलब कॉइन. तो ऐसी मेटल की चीज़ें हैं और पत्थर है, तो ये सब जो हैं वो वाटर में सिंक हो जाएंगे. ओके, so here it is also same way we have to collect some of the material which is available at our home, or maybe all this kind of material is present in your compass box. तो उसमें आपको ये मटेरियल लेके एक पानी का ग्लास लेना है और उसमें वन बाय वन आप डाल के चेक करना है कि विच मटेरियल फ्लोट एंड विच मटेरियल सिंक. चिल्ड्रन, ये चैप्टर ऑलरेडी वी हैव डन इन ड्यूरिंग our bridge course. Fine. So most of the things are familiar to you. Okay children, the next one is transparency. Transparency मतलब कैसे आपको दिखता है. ओके, फॉर एग्जांपल आप ग्लास विंडो में से देखो तो बाहर की चीज़ें आपको आसानी से दिखेगी, लेकिन ग्लास विंडो पे अगर फिल्म लगाई है, जो पर्पल कलर की फिल्म होती है सन रेज को थोड़ा रोकने के लिए, तो उसमें से आप देखोगे तो आपको थोड़ा हल्का सा दिखेगा, है ना. वैसे ही कोई ग्लास ऐसे होते हैं जो थोड़े डल जैसे दिखते हैं, तो उसमें से हमें पूरा दिखाई देगा नहीं. बट अगर हम विंडो ग्लास के बदले वुडन की विंडो है या प्लाईवुड या ऐसे प्लास्टिक मटेरियल की विंडो है तो नहीं दिखाई देगा, है ना. तो उसमें से हमें कुछ भी दिखाई देगा नहीं. सो दैट इज मीन बाय दे आर आइदर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट. सो हियर इट इज गिवन materials and light. So there are 3 different types of material that light will or will not pass through. तो ऐसा मटेरियल जिसमें लाइट कम्प्लीटली पास होती है. सी चिल्ड्रन, लाइट जब पास होती है ना तभी कोई भी चीज़ हमें दिखती है ना. तो ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स उसमें से लाइट कम्प्लीटली पास होती है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो हमें आर पार पूरा दिखता है. ट्रांसल्यूशन दैट मीन्स पार्शियली लाइट विल पास. पार्शियली मीन्स पूरा का पूरा हमें नहीं दिखाई देगा, हल्का सा दिखेगा, है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूशन. एंड ओपेक, ओपेक दैट मीन्स नो लाइट विल पास. फॉर एग्जाम्पल वुडन डोर या वुडन विंडो, तो इसमें से लाइट पास होगी नहीं, तो हमें आर पार उसमें से दिखाई नहीं देगा. सो दैट इज़ 3 kinds ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज़ गिवन हियर. वन एग्जाम्पल इज़ गिवन. देखो यहाँ पे जैसे ग्लास की बॉटल्स है तो उसमें से हमें कम्प्लीटली दिखता है बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट. फाइन. तो ऐसे ही आप अपने आसपास के अलग अलग चीज़ों को देख के पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या ट्रांसल्यूसेंट है. इज़ दिस क्लियर चिल्ड्रन? फाइन. Here children, one activity is given. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Okay. Now here एक आपको थोड़ा सा ये आप घर पे भी कर सकते हो कि आपके पाम है, हाथ है, उसके नीचे आप टॉर्च ऑन करके रखो. सो हियर जैसा आपको थोड़ा हल्की सी लाइट दिखती है वैसा आपके पाम में भी दिखेगा. वैसे ही अगर आप सनलाइट का जो रेज
आपके थोड़ा सा रेज अगर आते हैं किसी हॉल में से या ऐसे, तो वहाँ से आपका हाथ रखोगे तो उसमें रेडिश कलर का थोड़ा सा दिखेगा और लाइट भी आपके पाम में दिखेगी. सो पहली सजेस्टेड covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो हम अगर इस एक्टिविटी से अगर देखें तो इट इज़ ट्रांसल्यूशेंट, क्योंकि लाइट थोड़ी सी पास होती है. फाइन. नाउ व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर, we learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. So this way इसकी property के हिसाब से हम materials को क्लासीफाई कर सकते हैं. वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स. ओके, ये हमें क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुप करने की आखिर ज़रूरत क्यों है. इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टूगेदर. सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम ईजीली. ये होता है बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें जल्दी से मिलेगी नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टडी की बात करूँ तो आपकी नोटबुक्स अलग होती है, टेक्स्ट बुक आप अलग रखते हो, वैसे ही ड्राइंग की चीज़ें आप अलग रखोगे, कलर्स अपनी जगह पे अलग होंगे. वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल कंपास, तो कंपास में भी कुछ अलग अलग जो प्लेसेस पे आप रखते हो. पेंसिल कहीं रखोगे, कहीं इरेज़र है, कहीं शार्पनर है. सो आफ्टरवर्ड्स इट विल बी वेरी ईजी टू फाइंड आउट सम पर्टिकुलर थिंग. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about these in higher classes. तो इसमें यहाँ तक हमें आप क्या करना था, सिर्फ किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना था. बट इन हायर स्टैंडर्ड इसी के रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आप जानोगे. ओके चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड बाय बाय.